دوستو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوستو آج ہم موجود ہیں لاہور کے آبرو ویلفیئر ایجوکیشنل کمپلیکس میں، جہاں پر آبرو ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آبرو پیس ہومز کے نام سے ایک جدید طرز کے دارالیتامہ کی افتتاحی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ آبرو پیس ہومز، آبرو ویلفیئر آرگنائزیشن اور آبرو ایجوکیشنل ٹرسٹ کی انفرادیت ان کی اپروچ اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ لوگوں کے گھروں سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور اسے الگ الگ کر کے اس سے اپنے مختلف پروجیکٹس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو آج یہاں پر آبرو کا ایک وزٹ بھی کروائیں گے اور انہوں نے جو دارالیتامہ قیام کیا ہے اور ان کے ایجوکیشنل کمپلیکس کا ایک دورہ بھی کروائیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے آج کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ السلام سر آج آپ نے آبرو کو وزٹ کیا، یہاں پہ پیس ہومز کا انوگریشن کیا، آپ کو کیسا لگا؟ میں آبرو میں پہلے بھی آتا رہا ہوں، ان سے میرے تعلقات ہیں کچھ 4 سال سے ڈائریکٹلی۔ تو پچھلے سال میرے پاس ان کی بیٹی آئی تھی، دا پروپوزل ٹو میک اے یونیورسٹی، آبرو یونیورسٹی بنانا۔ اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ ان کی مدد کروں گا، لیکن میں ان کو فالو کرتا رہا ہوں۔ آبرو بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اور ایک ایگزامپل ہے کہ ہاؤ اسمال این جی اوز کین رائز اپ ٹو دا ہائیسٹ لیول اف یو ہیو ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ اینڈ ولنگنیس ٹو ورک ہارڈ۔ دونوں نے، میاں بیوی نے، ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ بہت بڑا ادارہ بنا دیا آبرو پیس ہوم، جو ہے نام بھی بڑا اچھا ہے، پیس ہوم۔ یس سر۔ اور جس پرپز سے بنائے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ آرفن چلڈرن کے لیے۔ اب ان کو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آگے چل کے نا یونیورسٹی میں آ جائیں۔ انشاءاللہ میرا سپورٹ یہ ہوگی ان کو کہ اس ادارے کو یہ آگے لے کے چلے۔ اب ان کے پاس ہائی اسکول تو ہے، صحیح، بالکل صحیح ہے، تو اس سے آگے لے جائیں کالج پہ، صحیح۔ دین دے کم یونیورسٹی۔ تو میرا انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہوگی ان کو سپورٹ کرنے کی۔ سر جب تک آپ جیسے لوگوں کا دست شفقت ہوتا ہے، اور وہی میرا خیال ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو گرو کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو لوگ مخیر حضرات ہیں وہ پیسے لگا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سیٹس کے اوپر بیٹھے ہیں عمومی طور پہ، اگر وہ مدد نہ کریں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آبرو نے 5 بچوں سے سفر شروع کیا، 5000 بچوں تک پہنچا۔ آج آپ کا ایک اور خواب پایا تکمیل تک پہنچا، آپ نے آبرو پیس ہومز کا افتتاح کیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ جی الحمدللہ یہ سفر بہت اچھا رہا۔ مانا کہ مشکل تو تھا، مسائل تو تھے، حالات نے کبھی کئی طرح کی کروٹیں بدلی، لیکن الحمدللہ اینڈ یہی ہوتا تھا کہ معاملات آسان ہو جاتے تھے اور حل ہو جاتا تھا۔ بظاہر پیس ہوم کو بنانا ایک مشکل کام تھا، اور یہاں پہ لوگوں کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ان 8 سالوں میں ہمیں یہ بنانے میں مدد دی ہے، تو انشاءاللہ اس کو چلانے میں بھی مجھے بھی اور میرے بعد آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور مدد دے گا۔ آمین۔ اچھا میڈم، آبرو کے اس وقت کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے تقریباً 8 پروجیکٹس ہیں۔ ایک تو سکولز ہیں، پھر نمبر 2 جھگی سکولز ہیں، نمبر 3 ہم علاقے کے لوگوں کو بہت چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ بہت غریب لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں قرضے دیتے ہیں وہاں ہم نے ایک چھوٹی سی ایسی شاپ بنائی ہوئی ہے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہیں، لیکن بہت کم داموں پہ، جس کو ہم تھرفٹ شاپ کے نام سے دیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ کہ 200-300 میں سوٹ مل جاتا ہے، بہترین اچھی کوالٹی کا، برتن مل جاتے ہیں، فرنیچر مل جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک تھرفٹ شاپ بھی ہے۔ اسی طرح ایک آبرو مارٹ بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم
माहाना मतलब उधार के उस पे और बहुत छोटी सी किस्तों पे ग्रोसरी भी दे रहे नहीं थे कर सकते। जी, उनको ग्रोसरी देते हैं। इसी तरह हम उस पे कूड़े पे काम कर रहे हैं, सूखा तो कूड़ा। आपका वन ऑफ द यूनिक थिंग कि यहाँ पे आने वाले जितने लोगों ने बात की और हमारे लिए खुद ये बहुत अप्रिशिएटेबल चीज़ है कि आप लोग उस चीज़ को जिसे लोग ज़ाया कर देते हैं, आप उसको इस्तेमाल में ला के और इसके बहुत सारे अखराजात वहाँ से पूरे करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमने एक छोटा सा इंडस्ट्रियल होम बनाया हुआ है जहाँ पे इलाके की बच्चियों को हम बेडशीट्स बनाना, कपड़े सीना, पॉट होल्डर्स वगैरह, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात थोड़े से मेहनत करने के बाद पूरे कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एक छोटा हमारा मेडिकल सेंटर भी है जहाँ हम लोगों से कहते हैं अपनी तमाम इस्तेमाल शुदा अद्वियात हमें दें और फिर हम उनको बिल्कुल फ्री जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह 8 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से अब ये एक अहम जो है हमारा पीस होम है। रिक्वेस्ट भी करती हूँ, दुआ भी करती हूँ कि आइए सब मिलकर इसमें साथ दें और इसकी बरकतों से ख़ुद भी फैज़याब हों और लोगों तक को भी ये पैगाम पहुँचाएँ। अच्छा, इब्तदाई तौर पे जो पीस होम है ये आपने कितने बच्चों के लिए अरेंज अभी किया? ये 200 बच्चों का है, लेकिन अभी हम शुरू में 50 बच्चे इसमें एंटर करेंगे। 6 महीने का एक्सपीरियंस देखेंगे कि क्या इसमें हमें मसाइल आते हैं, क्या हमें करना यानी चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर जी, पे भी आप इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। अभी 50 बच्चे हैं तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर 100 लड़के और 100 लड़कियां हैं। सही। जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड वन एंड ओनली जनाब खालिद अब्बास डार साहब। आप मज़ाहिया अदाकार भी हैं, थिएटर के डायरेक्टर भी हैं, प्ले राइटर भी हैं और इसके अलावा आपकी शख्सियत बहुत जानदार है। आपने आबरू का विज़िट किया, सर आपने आबरू को कैसा पाया? माशाल्लाह, मैं पहली दफ़े आया हूँ। मैं वैसे पहले तो इनको एक आध क्लिप में देखा मैंने इनको, मगर ये कि यहाँ आके तो और ही हालात लग रहे हैं। किस कदर बेहतर काम कर रहे हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन आबू वालों ने, अल्लाह ने इनकी आबरू रखी हुई है और अल्लाह ताला इसी तरह इनकी आबरू रखे। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बल्कि सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि कूड़े को यानी सोने के दाम बेच रहे हैं। यस। कूड़ा इकट्ठा करके और उससे यानी 35% इनके अखराजात निकल आते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा है, इट्स एन आइडिया, बिल्कुल मैचलेस आइडिया है ये। हमारे यहाँ तो ज़्यादा इदारे जो हैं, जैसे मेरा अपना इदारा है सुंदस, वो हम ज़कात भी लेते हैं, सदका भी लेते हैं, खैरात भी लेते हैं, डोनेशंस भी लेते हैं। ये इदारा भी आबरू भी लेता होगा, मगर इसके साथ देखें इन्होंने क्या अच्छा एक इंतज़ाम रखा है कि हर घर में कूड़े का एक बैग रखा हुआ है और वो कूड़े का बैग जब भर जाता है तो ये वहाँ दूसरा बैग रख के आ जाते हैं और वो बैग ले आते हैं और उसको फिर रिसाइकलिंग के लिए दे देते हैं जो लोग इनके पास है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब ये जो इन्होंने स्वीट होम बनाया ना, ये कमाल का है। और अगर आप इसको एक्सपोज करके तो जनरल पब्लिक में या पब्लिक में जो आपके देखने वाले हैं वो अगर देखें तो वो भी इनको उतना ही अप्रिशिएट करेंगे जितना मैंने इनको ये नहीं देखा। रुबीना बीबी को आज मैंने पहली दफ़े ज़िंदा देखा और शकील को भी पहली दफ़े ज़िंदा देखा। वैसे एक आध क्लिप में मैंने पहले देखा हुआ था। अल्लाह इनको हिम्मत दे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे इनको, आबरू वालों को। ये आबरू वाले बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आबरू का जो फूड प्रोग्राम है उसको देख रहे हैं, कुछ इसके हवाले से हमें तफसीलात बताइए कि यहाँ पे जो बच्चों को खाना मिलता है उसका मेयार क्या है, उसके चार्जेस क्या हैं और आप उसे कितनी मेहनत से तैयार करते हैं, कितने बच्चों का खाना बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 6 पॉइंट हैं इस टाइम। उन सब जगह के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर खाना डिलीवर किया जाता है। मेयार हमारा ऐसे ही है जैसे हम एक VIP लोगों को देते हैं, उसी तरह हम अपने बच्चों को भी खाना दे रहे हैं। आप हमारे किचन का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको क्वालिटी हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो सर तकरीबन कितने बच्चों का इंतज़ाम आप रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं? तकरीबन हमारा इस टाइम जो डेली है ना, कोई 3000 बच्चों का खाना डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। खाने में उनको वीकली मेन्यू होता है, उस हिसाब से आप देते हैं या जिस तरह से आपके पास बजट होता है उस हिसाब से आप मेन्यू बनाते हैं? बजट के हिसाब से मेन्यू बनता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे कभी कुछ चीज़ शार्ट हो जाती है, मार्केट में भी शार्ट हो जाती है। तो जिस हिसाब से चल रहा है वो रेगुलर डेली वेजेस के हिसाब से चल रहा है। जो चीज़ प्रोवाइड हमें मिल जाती है मार्केट से भी और जो हमें स्पॉन्सर करते हैं उनकी वजह से, उस हिसाब से हम इसे प्रोवाइड बनाते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे अगर आज का हम जिक्र करें, आज स्कूल चल रहा है, क्लास है? जी, आज सुबह तमाम स्कूल चल रहे थे। आज सुबह हमने मटर बिरयानी बनाई थी और चिकन कौरमा। सही।
तो ये एक वक्त का मेन्यू है या दोनों वक्त में फिर आप इसको मूव करते हैं? नहीं, हमारा एक वक्त का मेन्यू है, दोपहर के जिस टाइम हमारा स्कूल टाइमिंग के अंदर ही हमारा खाना दिया जाता है। अच्छा, हमने ये भी चीज़ सुनी कि आबरू के बच्चों को दूध का एक गिलास भी यहाँ पे वो मुहैया किया जाता है। जी, वो ऐसा जो बच्चे शीर ख्वार हैं उन्हें 250 ml जो दूध है ना रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमारा अपना फार्म हाउस है जहाँ पे हमने खुद जानवर पाल रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रशीद साहब। जी, तो दोस्तों ये था आबरू वेलफेयर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का आबरू पीस होम्स। और दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अपने साथी सईद हसन को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।